IIM college and I'm taking SCSE subjects. Yes. Hello, good evening, sir. Good evening. Sir, myself, Dr. Ashok Kumar, and I am assistant professor in Department of Physics, D. Krishnamurthy. Ji, Doctor Saab. Thank you, sir. Good evening, sir. Myself, Rakesh Verma, assistant professor in EC department, Hindu College of Engineering, Sonipat, sir. Ji, Rakesh. Good evening, sir. Yeah, good evening. Sir, myself Neeraj Kumar from Kite Group of Institutions, Ghaziabad. Oh, great. And it's my fourth time when I'm going to join the FDP held by D. Krishnamurthy. Really? Yeah. And our association with the D. Krishnamurthy is since 2016. Okay. When I recently joined my first FDP along with you, sir, on MCDMA. Oh, with me also. Yes, sir. Yes. And second MCDMA, second in the last year also I have joined that. Same. Okay, that's Yes. nice. Yes, sir. Yes, next. Hello. Good evening, sir. My name is Mohit, sir. I am working in Ganga Institute of Technology and Management, working in Fire Technology and Safety Department, sir. Okay. Mohitji, recently I think you got A plus in, A in NEC. Yes, sir. Yes, sir. Yes, A grade in NEC. Yes, sir. I think this is maybe the first engineering college who has been accredited by NEC in Haryana. Yes, sir. Yes, sir. Maybe very few, but I don't remember. Yes, sir. Yeah, next. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. My name is Shashi Bala. I am working in Purnamurthy campus. Kami. Kami. Ji, ji. And Subject, ma'am? My teaching subject is mathematics. Mathematics. Okay. Good evening, sir. I am Dr. Sunil Kadyan from Geetam Kaplana. I am from Mechanical Engineering Department, sir. Okay, Anil, Sunil is also our student. He has completed his master's as well as PhD from our university. Yes, sir. Ji. Good evening to all of you. Myself Dipesh Sharma, and my teaching background is electrical engineering, and from DCUST itself. Ji, Dipesh. Thank you. Myself, Jyoti from Electronics and Communication Engineering Department from South Point College, Sonipat. South Point. Okay. Good evening, sir. Good evening. Sir, I'm Shweta. I'm working as an assistant professor and as a program head for the medical laboratory technology in Sushant University. My background is teaching allied health courses to the CVT, MLT, MRIT students. Where is this Sushant University located? It's in Gurgaon. It's in Gurgaon. Earlier it was named as Ansal University. Now it has been renamed to Sushant University, sir. Okay, okay. Thank you. Yes. Okay. Thank you, sir. Good evening, sir. I'm Apurva Lal from Lovely Professional University, and I'm assistant professor in Department of Fine Arts. Finance. Yeah, good. Fine Arts. Yes, fine arts. Okay. Lovely is one of the university. I think your strength is about 35,000 students, or it has been increased. Yes, sir. Yes, sir. It has been increased right now. Okay, good. Next, please. Thank you, sir. Sir, am I visible? Yeah. Good evening, everyone. Myself, Nitin Kumar. I recently completed my MTech from D. Krishnamurthy, and I have joined IITM Murthal now. Oh, great. Thank you, sir. Namaskar, sir. Ji, namaskar. Hello. Hanji, Sir, ji. myself, Dr. Anjana, Associate Professor Music Vocal from Government College for Women, Karnal. Karnal. Okay, good.
Priya ji, we are unable to hear you. Can you hear us? Okay, then something wrong with your audio, or you have not connected to audio. Just go to that mute button and you see an up arrow. See if your selected speaker is the machine speaker or not. जो म्यूट बटन के साइड में एक एरो दिखेगा, आप उसमें क्लिक कीजिए, एक बहुत सारा बड़ा लिस्ट आएगा, उसमें सिलेक्ट माइक्रोफोन आया, कुछ सिलेक्ट हुआ है? नहीं, तो शायद आपको लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, तभी आपको शायद ऑडियो आएगी। Now I request, I think our resource persons, Professor Vinod and Raju Nambiarji, I think now you can start with the today's sessions. Thank you, Professor Ramesh. Thank you. Pleasure meeting you. Thank you for the introduction. But I think it will be better if you come at least once at Murthal. Okay, I will definitely plan to do that. Yeah, sure. Yeah, sometime, maybe one day, at least sometime next week. Ji, sir. Because I'm in Delhi on Monday, Tuesday, maybe Wednesday of next week, I'll drop in. Oh, that will be nice. Yeah, let me just plan this. Yeah. Thank you. Please convey to me. Thank you. Thank you, Professor. Thank you. Continue, sir. Thank you, Ramesh. Yeah. I would like to welcome my colleague, Dr. Vinod. Pleasure to have you on the same program as me. Thank you, Rajiv ji. Thank you. Thank you, Vinod ji. Yeah. One thing is, we have come to learn of a subject called developing consciousness. It's not an easy subject. Yeah. So I would like you all to keep your videos on and be interactive, because you cannot expect me, it's not a theoretical subject, and expect me to deliver some theory to you and you understand consciousness. It's not going to happen that easily. So I'd request all of you to keep your videos on so that we can start. This program is going to be mostly interactive. It's not going to be a one-way discourse. So I would need to have your responses so that we can go forward. Now, there was a program that I was teaching day before yesterday, and it was like my screen was filled with all 40 people. Every single person through the entire week kept their video on. So the session went much better than the other times. You know, as professors, as people from teaching faculty, we know, I mean, when you get a response, you want to talk. And this subject is so deep and vast that you really have to make me talk for you to get something. Otherwise, it will be very theoretical, and that's not the way to go about. Yeah, you all agree with me? Yeah, ठीक है. हिंदी या इंग्लिश की दोनों? दोनों. अच्छा, दोनों में बात करते हैं. शायद विनोद जी, I would need your help, because some of these deep words of consciousness, I might not even get my words right in Hindi. Sure, it would be my pleasure. Yeah, so ठीक है ना, क्योंकि देखो at the realm of the mind, you need everything to have a discussion on something. You need to understand, right? You need to bring it to the realm of the known to have a discussion. कोई भी चीज की जानकारी के लिए पहले उस चीज को जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, उसको एक जानकार जैसे जान सकते हो उस फॉर्मेट में डाल के फिर सामने डिस्कशन में ला सकते हैं, है ना? No, first you have to get, and consciousness is mostly at the realm of the unknown. So first you have to make some elements of it known for us to have a discussion. Yeah, making sense? Okay, first and foremost thing I want to know from you is, what is consciousness? We all talk about consciousness, but hai kya cheez ye? What is consciousness? Whatever. See, the thing is, we are all diving deep and exploring into a subject which is mostly not very easy to understand and not known. You know, one is, there are things that you know in life. है ना, कुछ चीजें आप जानते हो, जैसे कि आप अपना सब्जेक्ट डांस हो, म्यूजिक हो, इंजीनियरिंग हो, जो आप सब्जेक्ट सिखाते हो उसके बारे में आपकी पूरी जानकारी है. दूसरा है द रेल्म ऑफ अननोन, मतलब जो आप नहीं जानते हो, कुछ चीज है जो आप नहीं जानते हो. तो इंजीनियरिंग इज अ सब्जेक्ट, म्यूजिक इज अ सब्जेक्ट, मे बी इट्स इन द रेल्म ऑफ योर नोन, यू अंडरस्टैंड इट, आपको समझ में आती है ना.
और आप ये भी जानते हो कि there is something that you don't know. What is it that you don't know? As professors of engineering, no, none of you know how to operate on a person, right? For a fact, you know that I don't know how to operate some patient who's come with a broken leg. I don't know. You know, one is the realm of the known, something that you know, something that you don't know. But there is something that you don't even know that you don't know. And we are today diving deep into that subject. समझ में आ रही है? तो अब जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में जो भी जानते हो वो बताए. Doesn't matter whether it is right, wrong, because all of us are learning, including me learning. So what is consciousness? So science plus meditation, I think so. So, okay. So what is meditation? What is science? Because we are not supposed It's a club. We are not supposed to answer a word with another word. You know, So when can you I make, tell? नहीं तो adjective हो जाता है ना वो. Science plus meditation. Now you say science plus meditation क्या? You will give me 2 more words. Then we will, the whole discussion I and you will have for the next 1 hour, and we will just go on and on and on, isn't it? Yeah, Purvaji. What according, or anybody else, what is consciousness? So consciousness is a state of present time. Just जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, आज हमारा FTP प्रोग्राम जो है वो आपके साथ चल रहा है. आप हमारे रिसोर्स पर्सन है, तो जो कुछ भी हमारे आसपास जिसे मैं जानती हूँ, जिसके प्रति मैं अवेयर हूँ, ये कॉन्शियसनेस है क्या? जी. आपने कहा इसके बारे में मैं अवेयर हूँ. See, there is a difference between are you conscious or do you have consciousness? I am conscious. No, when you say are you conscious means it talks about the realm of awareness. समझ में आ रहा है? Do I have a consciousness? You may say I maybe I have, I don't know. ये थोड़ा play of words है, slightly difficult. You know? Yeah, but ठीक है, that's a good explanation. So the very awareness that you are here is what you think is consciousness. Okay, good. ठीक है. और कोई? Anybody else? So consciousness is, I guess, कि when something is visible in front of our eyes, जो हमें दिख रहा है, हमारी state of mind. I guess there are 2 terms, conscious mind and unconscious mind. तो conscious हमें पता होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, but consciousness is कि हमें वो visible भी है. Okay, ठीक है, ठीक है, ठीक है. और कोई? सर सतर्कता भी कॉन्शियसनेस में रहेगा. एक्चुअली ना इंग्लिश में थोड़ा सा, इंग्लिश है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस मामले में. एक्चुअली कॉन्शियसनेस को इंग्लिश में जब एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. जब आप आत्मा को कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो सतर्क होना उसको आत्मा नहीं बोलते हैं ना. समझ में आ रही है बात को? क्योंकि इंग्लिश में कॉन्शियसनेस और बीइंग कॉन्शियस एक ही वर्ड है. इट्स अ प्ले ऑफ वर्ड्स, इट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो हम अक्सर उसके बारे में कंफ्यूज होते हैं. यू नो, व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड आर यू कॉन्शियस? So conscious word is used in a different connotation. Conscious word is used to describe your awareness also sometimes. Yeah, loosely used. ठीक है. और कोई? तो इसीलिए सतर्कता को मैं, या आप सतर्क हो पूछ सकते हो हिंदी में. आप ये नहीं पूछ सकते हो मतलब आत्मा जिसको बोलते हैं वहां पे ये नहीं यूज कर सकते. अगर आप मैं हिंदी में पूछता कि ये क्या है, व्हाट इज आत्मा, तो आप नहीं बोलते सतर्कता, है ना. इंग्लिश में थोड़ा सा चैलेंजिंग है. समझ में आ रही है बात? ठीक है. ओके. और कुछ? और कोई क्वेश्चंस? और कुछ कॉन्शियसनेस? आई वुड लाइक टू हियर एवरीबॉडीज टॉक, बिकॉज विदाउट विच सी सब्जेक्ट इज सो डिफिकल्ट टू स्पीक ऑन कि समटाइम्स आई वंडर व्हाट विल आई स्पीक फॉर द नेक्स्ट 10 hours or 12 hours of your session. So it's better to come. So whatever, that's what I'm saying. We'll try to make the realm of the unknown a little known to have a discussion. सर किसी बात के लिए जब हम जागरूक होते हैं उसे कॉन्शियसनेस बोलते हैं. अगर किसी बात के लिए जागरूक है, मान लो अब आप हमें बता रहे हैं कुछ, तो हम जागरूकता से वो सुन रहे हैं. So किसी बात के लिए आप जागरूक हो, उसको आप आत्मा बोलते हो? सर आत्मा के अकॉर्डिंग सर सुन ही रहे हैं.
क्योंकि इसमें हमारा पूरा ध्यान लगा हुआ है सर, आत्मा से लेके माइंड से लेके सभी कुछ है, तो इसलिए हम जागरूक हैं, उस चीज को ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो कॉन्शियसनेस ही है। आपने अभी दो वर्ड इसका वर्ड इसमें लेके आया, आत्मा और माइंड। हाँ जी सर। है ना? So you हाँ have जी got the mind and consciousness. So what is the mind and consciousness the same thing? सर मेरे लिए तो सेम ही है, क्योंकि माइंड ही हमारा है जो वो सब पूरी बॉडी को चलाता है, क्योंकि अगर Mind माइंड body को हमारा चलाता उस है, ठीक हिसाब है। से वो सुनेगा तो हम जागरूक ही हैं सर। अच्छा, ठीक हाँ है। जी सर। डॉक्टर सोनिया, आपको कुछ पूछना है? आप बोलना है? हाँ जी सोनिया जी, आपकी आप म्यूट है, अनम्यूट करेंगे? सर आपने कहा था ना ऑडियो वीडियो ऑन करके रखिए, इंटरेक्शन सही रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम विजिबल। मुझे आवाज नहीं आ रही। आपका हैंड रेज्ड है, इसलिए हाँ। मैंने पूछा आपको। सर एक्चुअली हैंड मैंने पहले रेज किया था, मुझे अच्छा, ठीक। ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा था, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, वो पहले का अब शो कर रहा है। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और कोई? let us hear more answers to what is consciousness. You know, एक चीज, एक और I want to bring to your knowledge one thing. देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना? I am having a conversation with you. So there is a dialogue between you and me, but do you see there is a dialogue between you and your mind at the same time? While we are having a dialogue or a conversation, there is another conversation going in your own head. है ना? आप मैं जो कह रहा हूं उसके साथ आप सहमत है या असहमत है? So you are saying yes, 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 no, yes, no, yes, no in your head. So there are two conversations happening at the same time, which you may not be aware, but it is happening, isn't it? Yeah. When you are saying yes to whatever I am saying, you already know. Now, if the second conversation is yes to the first conversation that we are having, which means you already know. आप उसके बारे में already आप जानकार है इसके बारे में, है कि नहीं? Yes or no? Yeah. जब हम कुछ कह रहे हैं, we are having a conversation and you say no, 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 which means you are going to reject whatever I am saying. Right? Either there is a yes happening in your head or a no happening in your head. Happening. Yeah. So either a yes or a no is happening. So in both cases, there is no new learning. है ना? सही है ना? दोनों ही संदर्भ में कोई नया लर्निंग आ नहीं रहा है। पहला जो आपके मन में कॉन्वर्सेशन आ रहा है यस, तो आप इसको ऑलरेडी जानते हो, इसमें नया कोई चीज नहीं है। नो आ रहा है तो उस चीज को आप आने नहीं दे रहे हो, तो वहां पे भी कोई न्यू लर्निंग नहीं है। क्या हम अगले जो 12 दिन हम बैठेंगे, 10, 11, 12 दिन हम साथ में बैठेंगे, क्या हम उस स्टेट में बैठ सकते हैं कि हमको कुछ जानना है इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ? क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना डीप है, अगर नहीं जानना चाहते हो तो इसमें आप अपना बहुमूल्य टाइम व्यर्थ करने का कोई मतलब नहीं है। You know, such an important time of your life you are going to give, there is no need. You know, so can we all come from a space of I want to learn something? You know, I may be teachers, I might be great in my space wherever I am. Can I sit for some time with the says that हो सकता है मैं इस चीज को विश्वास नहीं करता, फिर भी मैं एक बार सुन लेता हूँ, हो सकता है I don't believe in it. No, that is the difference between India and the other, you know, the other, what do you say? I'm not getting the right words. If you look at Western things, if you look from a Bible perspective or something, they say first have faith and someday you will have an experience. है ना? या तो फिर कहीं और जगह पे ऐसा होता है, first science will say that first have experience and then I will believe in it. First it comes to the level of your experience and then you will believe in it. Or it is you first you believe in it, if you get an experience it is fine. But it's in only India where we had science and spirituality go together.
It was never in loggerheads. If you look at the Spanish Inquisition and all the things for 1,000 years when spines was not allowed to grow, that is because religion had a different connotation. They say first have faith, and then if you get an experience, you get, otherwise whatever. Isn't it? Yeah, to the other extreme of it was, okay, only when I believe I get scientific evidence of it, I will believe in it. But in India, science and spirituality always went together. You know, the experience and the faith both were together. You know, I often say yoga is a very subjective experimentation, you know. So you cannot get an objective proof to yoga sometimes. If I do yoga and I am a beneficiary of yoga, there is already a subjective verifiability of my yoga, right? समझ में आ रही है बात? You know, science requires everything to be taken to be into a lab, processed, and a final outcome come out of it. So there is objective verifiability today in the way we look at science. But if you look at yoga or any of these consciousness things, they're all subjective verifiability. But again, the funny thing about science is if somebody goes to a doctor and says, I have a knee pain, the doctor does an MRI, CT scan, all the things and says, doctor says, the report says you have no pain. But you say, I have pain. No, according to medical thing, you have no pain. So that is not correct, right? Many a times you feel that some people might, for a small problem, some people feel huge pain. They're not able to deal with it. But we think, what's the big deal about it? But for that subject, for that person, that experience is what it is. Am I making sense? Yes, no? Or is it confusing? Upar se ja raha hai? Yes, so if you don't understand what I'm saying, I would like you to interrupt me and ask so that we can make conversation that's making sense. Yeah? Yes? Am I making sense? Yes, sir. You know, if you look at yoga, consciousness, all these things, there is subjective verifiability. From a subject perspective, from the person's perspective, there is difference. If I'm doing yoga, I'm feeling better, I'm feeling more energetic, I'm doing all of it is making me more enthusiastic, more energetic. So from a subjective perspective, there is verification of that. Maybe I'm not able to put that into a lab and verify it. Nowadays, even yoga has many places where they have objective verifiability. They do a double-blind test on, yoga and different diseases. They have all these things that happen. But having said that, some of the things have subjective verifiability. So we'll have to sometimes believe that also. Yeah, and the subject of consciousness is such. Okay. So coming back to what is consciousness and what is the mind. So first we need to know what the mind is before we understand what the consciousness is. Somebody said mind and consciousness are the same. What do you think? What do you think? Okay, tell me what is the mind and then tell me what is the consciousness, or tell me both are the same, or if both are different, tell me both are different. Sir, not both are same. Okay. Mind is our brain. Mind is our brain. Okay. और जिससे हम लोग सोचते हैं और सोच से हमारी जो कॉन्शियस है वो काम करती है. ठीक है सोनिया जी, कभी आप माइंड अपना आप कह रहे हो कि माइंड इज द ब्रेन, कभी क्लास में बैठे हो और पूरा क्लास मतलब यू हैव अटेंडेड द एंटायर क्लास, but when your friend or somebody asked you, I'm talking about way back when you were a student, I'm not talking as a professor, you came out of the class and somebody asked you what did the professor or the teacher teach, nothing was there. So if the mind is the brain was there in the class having given the attendance. है ना, फिर कहाँ कुछ रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? कान के पर्दे तो नहीं लगे थे ना, कान में कोई ऐसा शट ऑफ अटेंशन. ओके ठीक है. अटेंशन नहीं होती, दैट्स व्हाई हम लोग अटेंशन यानी क्या? अटेंशन यानी क्या? अटेंशन जैसे हमें कुछ अभी जैसे आपने भी बोला कि आप मुझे सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे, कि आप कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा. अगर हम आपको अटेंटिव होके सुन रहे हैं तो तभी रिसीव कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन. यानी क्या?
अटेंशन, अटेंटिव मीन्स अगर हम अटेंटिव नहीं होंगे, मेरा माइंड. Correct, exactly. So which means attentive means body, breath and mind is at the same place at the same time, then only you are there. You know, I think as professors, we should be able to find out a method to give attendance based on body, breath and mind is the same. Body and breath is at the same place, but the mind kahin pe bhi 45 minutes mein it goes around to anywhere, right? It necessarily does not stay where it is. So my question is, where is the mind? It's definitely not the brain, right? It's not in the brain. Otherwise, it will not be able to go out. If it is in the brain should also go with the mind. I told you this is a deep subject, and we will have to go like this, you know, exploring this journey. The consciousness is going to be a journey of exploration. Yeah, anybody else? Did this ever this question come in your mind? What is mind and what is consciousness? Anybody else has an explanation? Because I see only 3 people on the screen. Others are all in unconscious mode. To me, they know they are there in the screen says they are there, but they don't exist. Science, the evidence is there. Okay, I can see all these 30 participants on the screen, but they don't exist. You know? Okay, so one more sense of mine is given a proof that you exist. One is the text that on the screen. Now I can see some visuals. Okay. Okay, so there are a lot of people coming into existence as we speak, Vinodji. Chalo, that's good. Sir, actually, mind is something that directs us to do something or to react on something, and consciousness is the presence of mind. That's what I think. Okay, tried well. Interesting. Okay. Mind is something that Directs makes you us do to whatever, do right? something, to react on something कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसकी हेल्प से हम ऑब्जर्व करते हैं, हम समझते हैं, या फिर हमें डायरेक्शंस मिलती हैं. एंड कॉन्शियसनेस इज की प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि प्रेजेंस जो ऑफ हमारे माइंड यानी क्या? इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है प्रेजेंस ऑफ माइंड. कि हमारा माइंड माइंड इज प्रेजेंट और एब्सेंट. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस, माइंड इज प्रेजेंट. जो हम देख रहे हैं हमारा माइंड वहां पर प्रेजेंट है. अच्छा, तो फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉन्शियसनेस कैसे हुआ? पहले आप माइंड प्रेजेंट और एब्सेंट. सो माइंड प्रेजेंट इज कॉन्शियसनेस. Mind present, that means we are able to we are able to understand what is happening in front of us. Okay. Yes. So that is, I guess, presence of mind. Okay, ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है. और कोई? I mean, I would like FC. This is called participation, and that is what I'm looking for from everyone, because your questions will be answered. See, only in India is what, you know, our scriptures are so beautiful that most of our scriptures have come with question answers. You know, there is an Upanishad called Prashna Upanishad. So it all starts with a question. If you don't have any question in your mind, then why are we even sitting here? You know, on such a deep subject. Yeah. ठीक है. Sir, presence of mind means store knowledge in our mind. Okay, शैलजा जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं समझ में नहीं आया. एक और बार, can you repeat yourself? Sir, consciousness means store knowledge and memory based in our mind. So now you are saying that consciousness is knowledge and memory. हाँ, store memories. At the present जो हमारे सामने हो रहा है हम उसको देख रहे हैं and store कर रहे हैं कि what happened. Okay. जो आप देख रहे हैं आप उसको स्टोर कर रहे हैं. Yes, कि एकदम से क्या हो रहा है, कॉल कर रहे हैं कि हमारे साथ मतलब एकदम से क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, उसको जो भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, that is called consciousness. Okay, ठीक है. Okay. ठीक है. Sir, in the presence of mind, it's
action means what we are doing and what we have taken the action, mean what the calculation we have taken to do some action. That So is you are the talking present. about three things: what you are seeing, then you are calculating, and then you are acting. You have said three aspects. That means at every situation what we are reacting and what is our action at that situation. That is the presence of mind. What we are thinking, what is that consciousness? No, it's a presence of mind, sir. अच्छा, presence of mind क्या है वो बोल रहा था. अच्छा, okay. प्रिया जी का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे आप. वो ठीक है. Okay, अच्छी बात है. Consciousness, sir, in the consciousness we can say that it's about our internal act, internal thinking about some external facts. Means what we the surrounding things, and with that surrounding things, what we learn, what we take. Sir, I'm not getting the exact नहीं, word. doesn't matter. आप हिंदी में बोलो या किस जो आप देखो, जितना आप वर्बोस बोल सकते हो उतना बेहतर है, तो कि आपको समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हो. हाँ सर, हमारे जो बाहर जितनी भी चीजें हो रही हैं उनका हमारे इंटरनल माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे हम क्या सीख रहे हैं, क्या चेंज हो रहा है हमारी. आई थिंक दैट इज द कॉन्शियसनेस, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल थिंग्स. So you are seeing something on the outside and you are perceiving something on the inside. Yeah, sir. For example, sir, if we have the positive persons around us, then definitely the positivity will be in our mind to do something. Okay. And if we are in the negative environment, I think that I think lack of some positivity. So I just Okay. इस सब में consciousness कहाँ है? Consciousness means, sir, it's a bridge between the external and internal activities. Oh, it's a bridge between the external and internal. Okay, ठीक है. Okay. Yeah. सर मैं कुछ कहूँ? जी नीरज जी बोलिए. मेरे हिसाब से कॉन्शियसनेस क्या है, जैसे लाइक मैं कुछ कर रहा हूँ, इस चीज को मतलब महसूस करना कि करने वाला इज दैट समथिंग डिफरेंट, बट आई एम डूइंग लाइक आई एम लिसनिंग द म्यूजिक. ओके, the music is listening by the some parts of the body, but the real enjoyment which is taken, that is a different thing, and the thing which is I am grasping or I am getting, that is not consciousness, because that unit, or you can say हम ऐसा कहें कि जैसे खाना खाने के बाद पेट भर गया तो वो जो तृप्ति वाला भाव है वो कॉन्शियसनेस को दिखाता है, पर खाना खाया गया वो एक बॉडी की जरूरत थी. तो चैतन्यता जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं कॉन्शियसनेस को, सो वो एक अलग है जिसे वी कैन रियलाइज, एंड दैट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर. मतलब व्हेन यू से आई कैन रियलाइज, मतलब आप चैतन्य हो कि आप मन हो? नो, मेरे अंदर जो यूनिट है वो चैतन्य. अच्छा, मतलब आपके अंदर जो है वो चैतन्य, आप और चैतन्य अलग है. या आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस प्लस मतलब लाइक जिसे हम आत्मा, सोल और सेल्फ, समथिंग लाइक दैट वी विल से दैट. सो यू आर सेइंग यू आर डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ. आई एम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, एंड सेल्फ इज, यू कैन से द कॉन्शियसनेस. सो यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी. यस सर. ठीक है. ओके, ठीक है. बॉडी इज मोर्टल, बट सेल्फ इज, कॉन्शियसनेस इज इमोर्टल, जिसे हम अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से हम लोग उसको एलाबोरेट करते हैं. ठीक है. And requirement and needs overall different for the body and the consciousness, we can say. Okay, and what is the mind now? What is mind? Body और consciousness के बारे में बोल दिया. मन क्या है? मन और consciousness में क्या correlation है? मन क्या है? मन देखिए तीन तरीके से मतलब हम लोग इसको, मतलब जितना मैं जानता हूँ समझता हूँ. ठीक है, तीन चीजें हैं: मन, बुद्धि और संस्कार. मन, बुद्धि और संस्कार. ठीक है. मन क्या करता है? मन शुरू में जो भी कुछ ख्याल हमारे माइंड में अलग अलग तरह के थॉट्स चलते हैं. ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर इट इज. ठीक है. बुद्धि उसमें से कुछ चीजों को सेलेक्ट करती है, जिसे हम ब्रेन. ठीक है. वही चीजें जब हमारी एक्टिविटी में आ जाती है वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, हमारी आदत बन जाती है. तो ये जो तीनों नेचर्स हैं ये कॉन्शियसनेस के हैं, सोल के कहें, आत्मा के कहें, या मतलब सेल्फ के अलग अलग पार्ट्स. या देयर आर 3 एक्टिविटीज फॉर. ठीक है. ओके, गुड. Okay, all right. Anybody else? सर, मन का yeah, sorry, बोलिए. सर, मन का मीनिंग होता है कि जो हम एक
बिल्कुल ध्यान से किसी चीज को जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर मन से हम सोचते हैं ना कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। तो ये हमारे इंटरनल हार्ट से ही आता है कि हम क्या कर रहे हैं। कहाँ से आता है? हार्ट से? मतलब मन से ही हम सोच पाते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में चीजें आती हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं किसी चीज को, तो वो उसमें मन का रोल होता है कि किस चीज को हमने अडॉप्ट करना है, किस चीज को हमने रिजेक्ट करना है। एक सोल टाइप होता है लाइक। आपने अभी 4 वर्ड बोला, एक तो मन बोला, एक तो हार्ट जी। बोला, एक दिमाग बोला। मन के बारे में। हाँ जी, बोलिए ना, सुन रहा हूँ। मन जो होता है कि मतलब प्योर सोल होता है, एक सोल की तरह होता है ना मन, के हम मन तो से मन सोच सोल सकते है। हैं। हाँ जी। ओके, ठीक कि है, हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। ठीक है। जो आत्म अच्छे शक्ति। बुरे की पहचान कर सकते हैं, सही गलत, वो मन है। हाँ जी, क्योंकि माइंड से जो ऑब्जर्व करते हैं, फिर मन से डिसाइड करते हैं कि क्या सही है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस मतलब जो भी माइंड में हमने स्टोर किए चीजें, कि हमने चीजों को ऑब्जर्व किया है जो एकदम से हमारे माइंड में आई है, हमने उनको रिकॉल किया है ना बार बार कि क्या क्या हमारे माइंड में स्टोर हो गया, कि हमने क्या क्या देखा, एकदम से हमारे साथ क्या हुआ, एकदम से क्या नहीं हुआ। दैट इज द कॉन्शियसनेस ना। ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। और कोई? हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, कॉन्शियसनेस ध्यान है और कॉन्शियसनेस माइंड। ध्यान है। ओके। जी। और माइंड जो हम ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, माइंड उसको कैलकुलेट करता है क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से इस पे रिएक्ट किया जाए। ओके, ठीक है। चलो, ये सब लोगों ने सुना। कोई कोई 1-2 लाइन में समराइज कर सकता है मन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? So many people have spoken. Now let's come to some conclusion from whatever you have heard. Somebody wants to summarize this. सर, जब आपका ब्रीथिंग, आपकी और जो आपकी कॉन्शियस अलर्टनेस, दोनों इकट्ठे कंबाइन करके, और जब किसी को सेंस कर रही है, दैट इज कॉन्शियसनेस, कि भाई आपकी जो पहले आपने ब्रीथिंग। ब्रीदिंग मतलब श्वास की बात कर रहे हो? हाँ सर, बिल्कुल। जब आपकी ब्रीथिंग्स और सर आपका ध्यान और बिल्कुल अलर्ट है कि किसी एक चीज की तरफ फोकस्ड है, बहुत सारे अंडर योर कंट्रोल्स, तो मतलब आप कॉन्शियस है उस चीज के लिए, दैट इज कॉन्शियसनेस। ओके ओके, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? So according to me, consciousness is the state of being alert and recognizing that something is happening or noticing that something is happening. Okay. Yeah. So consciousness is something that notices that something is happening. Yeah. Okay, ठीक है, ठीक है। Getting alert about something. मन और कॉन्शियसनेस के डिफरेंस बताता हूं, इसके बाद हम कल इसके ऊपर से बाकी बहुत सारे रेल्म्स आपने जो बोले हैं, बुद्धि, अहंकार, सारे चीज आप बोले हैं ना, these are all different realms. फिर आपने कहीं तो आपने कॉन्शियसनेस को मेमोरी जैसा बताया है ना, जो जो स्टोर करके रखते हैं वो कॉन्शियसनेस है। वन थिंग आई कैन से दैट द वेव, wave has an identity but it is a part of the ocean, है ना। जो समुद्र में जो लहर आती है, जब वो लहर आती है तो लहर का एक आइडेंटिटी है। हो सकता है वो लहर बोले कि मैं लहर हूं, लेकिन it is still a part of the ocean, right? So mind is just one small aspect or one layer of that of the ocean called the consciousness. ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए आइडेंटिटी है, फिर उसकी आइडेंटिटी ओशन के साथ एक हो गया। नो, इट हैज नो आइडेंटिटी आफ्टर अ व्हाइल। सो आई विल जस्ट लीव यू विद दिस थॉट टुडे, है ना, and then we will come back tomorrow and discuss more. So what we will do is we have a 10-minute break. At 7:45, 7:50 we end the session. 8 o'clock we assemble back, and at 8:45 we end that session and then have another 10 minutes break. So what we will do is we will not take that 10-minute break and end the session at 9 o'clock with a Q&A. Is that good with everyone? 7 to 9 सेकेंड ब्रेक हम नहीं लेते हैं, 7 से 9 बजे तक हम, बिकॉज बाकी सब लोग शायद ऑफिस से आए हो, देन उनका डिनर बाकी है, कुछ लोगों को घर में खाना पकाना बाकी है, कुछ लोग सेशन होते होते खाना पका रहे हैं, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं ना।
है ना? So ये भी सब होता है ना? इसके बीच में खाना पक भी गया, खाना खा भी लिया, तो ऐसे होता है. These are things that happen. So we will keep it 7 to 9. We will keep it simple. So we will have a 10-minute break from 7:50 to 8 o'clock, and then 8 to 8:50, and then a 10-minute Q&A at the end. Is that good with everyone? Yes, sir. Yeah. ठीक है. Yes, sir. On whatever we spoke so far, you have any questions? So the first part of the session will be mostly talking about theoretical subject on different aspects of consciousness. I mean, there are several aspects that we want to talk about: the mind and the consciousness and the environment, many aspects, very, very interesting aspects. And the second part of it is tools and techniques to understand consciousness itself. है ना? हम 2 दिन पहले एक पूना में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ हमारे, जहाँ पे 1.5 लाख बच्चे जुड़े थे गुरुदेव के एक इवेंट में. तो उस इवेंट में उससे पहले गुरुदेव ने एक ध्यान कराया कि देखो, हमको आप अगर किसी से गुस्सा है, तो अभी मुझे मीरा जी या प्रिया जी से गुस्सा है, तो क्योंकि जैसे उनका चेहरा मुझे सामने आता है, तो मुझे उनके प्रति ये भाव फिर से आता है, राइट? है कि नहीं? If I'm angry with you, I have to have an impression, a face, something that comes in front of me. You know? तो गुरुदेव ने उस दिन ये एक ध्यान कराया कि imagine that the person whom we are angry with is faceless. There is no face at all. फिर गुस्सा कर सकते हो क्या? If there is no face, नहीं. So all that. So the second half of the session is just tools and techniques to understand all these aspects. आज हम पंचकोशा मेडिटेशन के बारे में देखेंगे, तो कल हम थोड़ा पंचकोशा के बारे में बात करते हैं, है ना? सो शरीर में कुछ रोग आने से पहले 6 महीने पहले ही मनोमय कोशा में वो दिखाई देता है ना? So these are aspects that we will look at. So the second part will be just going into that experience and understanding what it is, and we will have pranayams and meditations, and some of these are beautiful meditations. करो तो समझ में आएगा कि क्या है. So Vinod ji will take you through a session in the second half where we will have tools and techniques, and then trying to understand the correlation between the mind and the emotions and how it makes an impact on our lives. ठीक है ना? ठीक है. और कोई questions है for anything that we discussed so far? No questions? Yeah, I mean, if you think a question comes into your mind and say, how stupid, I don't want to look dumb asking this question, please ask that question. Because that might be an intelligent question, because what is deciding that the question is dumb is your mind or your intellect. And consciousness is way beyond these realms of living. ठीक है ना? Vivo. ठीक है. All right, we'll take a quick break at 8:05. 8:02 we will assemble back if you have no questions. You have any questions? थोड़ा सा difficult है subject, but we don't want to make any difficult subject even more difficult, because we don't want to make everything about left brain and logic. We want to bring everything to the realm of the experience. So we will try to simplify it as much as possible. That is why this discussion. मैं generally ये statement that the mind and the consciousness, mind is a wave in the ocean बोल के finish कर सकता था वहाँ पे. That is how theories are taught, right? But we want to come. I mean, let us get into that level of interaction and understand what it is, and then we discuss. ठीक है? This is the same format we will follow. Whoever are into cooking or eating or something, tomorrow I think it would be better if you take that time off. Yeah? Cooking, you can come half an hour early. That's why I'm ending the session at 9 o'clock, so that more people can be seen on the screen and more people can discuss. Okay? All right, then we will take a quick break. 8:05 we will assemble for the next session. Okay? Thank you. Thank you. Thank you, Rajiv ji. Thank you, Vinod ji. I'm sure everyone will have a beautiful time with you for the next 1 hour and have a beautiful experience as well. Yeah. Thank you. मेरा बैग कहाँ है? नीचे.
10 मिनट का ब्रेक हो गया।
So welcome everybody. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सुमित जी आप मुझे को-होस्ट बना दीजिए। ओके सर, ओके। और अभी मिस्टर दक्ष ज्वाइन करेंगे, उनको भी को-होस्ट बना दीजिएगा। ओके जी सर। Well, so welcome you all to the second and the last session of today's FDP. And I would really appreciate if you could turn your videos on. आप लोग अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। Everybody, please turn your videos on. Dr. Sonia, Meera ji, Mamta, Jyoti, Nitin, Neeraj, Dipesh, Vatan, Rakesh Verma, Dr. Ashok, Dr. Virendra. Dipesh ji, Vatan, Dr. Virendra, Mamta Arora, Dr. Ashok Kumar, Meera ji. So well, so we are starting the second session and last session of today. So Hindi will be okay. कितने लोग कंफर्टेबल है हिंदी के साथ? Yes, sir. Yes, sir. Please raise your hand virtually or physically. Good. Well, so we'll be using English. जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, थोड़ा इंग्लिश और ज्यादा हिंदी चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आप लोग वीडियो ऑन कर लें, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ नियरली 10-12 मिनट्स, 10-12 मिनट की बात है। यदि आपकी बैकग्राउंड में कोई नॉइसेस है, यू मे म्यूट योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि पीछे नॉइसेस नहीं है, तो यू मे सिट विद अनम्यूटेड मोड। वेल, सो हाउ वाज द फर्स्ट सेशन? It was great. Yes, sir. It was great. तो देखिए कितनी बहुत बड़ी बात को और पूरे डिस्कशन से हमने क्या समराइज किया। एक लाइन में यदि कहें, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज लाइक एन ओशन, एक समुद्र। समुद्र में क्या उठती हैं? ऐसे करके बताइए, सब लोग ऐसे करें। Wave. लहरें उठती हैं। अब ये बताइए, क्या लहरें और समुद्र अलग अलग नहीं है, एक ही बात है? लहर जब तक है लहर है, और जैसे ही वो समुद्र में समा जाती है, क्या बन जाती है? वो समुद्र बन जाती है। तो अभी हम धीरे धीरे, हम जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे, अनुभव में चीजें आएंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप लोग ये उम्मीद करके आए दैट वी विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट, एपीआई स्कोर में ऐड होगा, प्रमोशन के लिए चाहिए एंड ऑल दैट। क्योंकि मैं इस सिस्टम का, मैं भी एक हिस्सा हूं, सो आई नो द वैल्यू ऑफ दिस सर्टिफिकेट। बट लेट अस थिंक बियॉन्ड दैट सर्टिफिकेट। I tell you, if you put your 100%, this FDP can change your entire life. Does it make sense? मेरी बात आपको समझ आ रही है? Yes, sir. आप इशारा करके बता सकते हैं। Good. Yes, sir. Well, so before we move onwards, I would like to ask you one question. एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। Do you know something about breath?
Yes, sir. आप अपनी सांस के बारे में कुछ जानते हैं क्या? Yes, anybody can share. Share something about your breath. Be quick. हमने टाइमली समराइज करना है ना. Anybody? चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूँ. When we came onto this planet, और से जब हमारा जन्म हुआ, सबसे पहला काम हमने क्या किया? Took breath. Yes, we had taken breath in. और जो लास्ट एक्ट होगा हमारी लाइफ का वो क्या होगा? The last breath. ब्रीद आउट. Yes. पहला एक्शन क्या है? ऐसे करें, ब्रीद इन. लास्ट एक्शन क्या होगा? ब्रीद आउट. Breathe out. और Yes. इन दो सांसों के बीच में क्या है? आवर लाइफ. व्हाटएवर इट इज कॉल्ड. अब देखिए ब्रेथ के बारे में, ब्रेथ का पता हमें कब चलता है? अच्छा छोड़ो, ब्रेथ को छोड़ो. सर का पता कब चलता है कि सर हमारे साथ है? जब सर में दर्द होता है. के ना, ऐसा है या नहीं है? पता नहीं चलता ये इस नाम की कोई चीज भी है. इसी तरीके से ब्रेथ का पता कब चलता है? आपकी फ्लाइट है अमेरिका के लिए, 2 लाख रुपए की टिकट ली है, अनाउंसमेंट हो रही है, दिस इज लास्ट कॉल. आप भाग करके जा रहे हो, फिर पता चलता है कि सांस नाम की कोई चीज भी है. फ्लाइट मिस होने वाली हो, या आपने चौथे फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट अचानक काम करना बंद कर दे, फिर पता चलता है सांस नाम की कोई चीज भी है. होती है. अच्छा एक बात बताएं, अभी जैसे मन के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम कल आएंगे इस पे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट माइंड एंड कॉन्शियसनेस टुमारो. लेकिन मोटा मोटी अगर हम देखें, हर कोई चाहता है कि हमारा मन हमारे काबू में रहे. कितने लोग चाहते हैं? जो हाथ खड़ा करेगा उसके काबू में आ जाएगा. सब चाहते हैं ना. अच्छा, आप लोगों ने पतंग देखा है क्या? हैव यू एवर सीन काइट? पतंग Yes, देखा sir. है? Yes, sir. अच्छा, पतंग को जब हम उड़ाते हैं तो उसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ला सकते हैं. Yes, sir. इज इट ट्रू? Yes, sir. अच्छा, ऐसा हम कैसे करते हैं? सर डोर की वजह से. वेरी गुड. डोरी जो बंधी हुई है. यस, जो डोर है, जो धागा है, उसकी सहायता से हम चाहे तो पतंग ऊपर जाए और चाहे तो पतंग ले जा सकते और नहीं. अब मान लेते हैं हम, अब जैसे यहाँ हिंदी के लोग भी बैठे हैं, संगीत के लोग भी हैं, और कुछ मैथमेटिक्स वाले भी हैं. मुझे जान के बड़ी खुशी हुई. मुझे लग रहा था मैं अकेला हूं. नहीं, अकेला नहीं हूं. सो यू मे कंपेयर माइंड विद काइट. मन भी क्या है? एक पतंग है. कैसे होती रहती है? ऊपर नीचे. अब पतंग को तो काबू कर लेते हैं डोर से, मन को कैसे काबू किया जाए? तो मन रूपी पतंग को काबू करने के लिए हमारे पास पहले से एक डोर मौजूद है. जानना चाहते हैं क्या? मेडिटेशन. ब्रेन. ब्रेथ. सांस जो है, सांस एक ऐसी डोर है जिससे आप मन रूपी पतंग को काबू कर सकते हैं. और जैसा कि राजीव नाम्बियार जी ने बताया, ये जो सेशन है इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, कोई भाषणबाजी नहीं. अभी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ हाउ वी कैन हैव ए से अवर माइंड. मन हमारी मुट्ठी में आएगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ. कितने लोग अनुभव करना चाहते हैं? सर मेडिटेशन सब करना चाहते हैं? गुड. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. अभी हम क्या करेंगे, आपसे थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं. वी विल बी डूइंग वन वेरी शॉर्ट मेडिटेशन, एंड दैट वुड बी गाइडेड मेडिटेशन.
उसमें आपने क्या करना है, बस आंख बंद करके, वीडियो तो पहले ही बंद कर रखे हैं, अब बची आंखें, तो वो आंखें बंद करके हम क्या करेंगे, जहां पर भी आप घर में बैठे हैं, यू हैव टू सिट कंफर्टेबली। आप चेयर पे बैठ सकते हैं विद बैक रेस्ट, आप आलथी पालथी मार के बैठ सकते हैं, लेटना नहीं है, पता चले लेट रहे हैं फिर मेडिटेशन नहीं होगी, फिर तो आप कल सुबह ही उठोगे। इज इट ओके? तो अब हम सब लोग क्या करेंगे, जहां पर भी हैं, आपका यदि वीडियो ऑफ है तब भी आप क्या करें, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। एक हम अनुभव करेंगे, जहां पर भी हैं वहीं पर आंखें बंद करके बैठेंगे, भोले भाव। बस सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, इनिशियली अवर बैकबोन शुड बी इरेक्ट। हमारी रीढ़ की हड्डी क्या होनी चाहिए, सीधी। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ी देर में, 2-4 मिनट में, 10 मिनट में, अगर वो झुक भी जाती है थोड़ी, इट इज अलाउड। कितने लोगों को बात समझ आ गई? वेरी गुड। तो अभी हम सब लोग क्या करते हैं, एक कंफर्टेबल जगह पर आप बैठ जाएं। अगर आपको लग रहा है कि लाइट तेज है, लाइट को धीमा भी कर सकते हैं, और आसपास यदि कोई शोर आ रहा है, आप दरवाजे को बंद भी कर सकते हो। अपना जो मोबाइल है उसको साइलेंट मोड पे कर लें, और आंखें बंद कर लेते हैं। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज। आंखें बंद कर लेते हैं, और यहां पर एक ऑडियो प्ले करेंगे हम, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, उसमें जैसा जैसा बोला जाएगा आप वैसा वैसा करते जाएं। सो हियर वी स्टार्ट द मेडिटेशन। प्लीज वेट फॉर द ऑडियो। आंखें बंद रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। We'll be keeping our eyes closed. Our backbone will be straight. कंधों को ढीला छोड़ दें। Relax your shoulders. Relax your body. Keep your eyes closed. We have to do nothing but to observe our breath. मन की आंखों से अंदर आती सांस को देखें और बाहर जाती सांस को देखें।
comfortably and easily. Keep our spine erect, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें और आंखें बंद कर लीजिएगा. एक गहरी सांस लीजिए और सांस को रोकिए और रोकना छोड़ दें, सांस अपने आप बाहर निकलने दें. और अपने आप सांस फिर भरने लगेगा, भरने दीजिए. सांस पूरी तरह से भरने के बाद रोकिए. जब सांस रोकते हैं, मन की स्थिति देख लीजिएगा. और रोकना धीरे धीरे छोड़िए और सांस अपने आप बाहर आने लग जाए. फिर एक बार सांस लेंगे. सांस पूरा भरने के बाद रोकेंगे. रोककर अपना मन की स्थिति पर ध्यान देंगे. सब थम सा गया है, सब रुक गया है. सांस रुकते ही मन भी रुक जाता है. और ज्यादा रोक नहीं पाएंगे तो आप रोकना बंद कर दीजिए. सांस अपने आप बाहर आने लगेगा. अब शरीर को सुकून मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है. इस वक्त उस पर भी ध्यान दें. मन ही मन अपना शरीर के प्रति सम्मान का भाव रखें. अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है आपका शरीर. यह शरीर हमारे लिए मिला हुआ एक अद्भुत देन है. Honor your own body. Your body is the most precious gift to you from nature. The millions and trillions of cells in your body. Now become aware of the air all around you and inside of you. The second dimension, the breath. It is the breath that is keeping us alive. ये सांस ही हमारा साथी रही है जब से हम आए दुनिया में, और आखिरी क्षण तक सांस हमारे साथ रहेगी. ये जीवन का साथी है सांस. जैसे जल में मछली, ऐसे हवा में हम हैं. भीतर और बाहर की हवा को एक साथ महसूस करें. Feel the air inside and outside of you simultaneously. Now breathe in with a smile and breathe out with a smile. As you smile, all the muscles in your face and the brain gets deep relaxation. अब तीसरे आयाम पर चलते हैं, मन, जिसमें विचार घूमते हैं, जहां भावनाएं उठती है. अपना ही मन. Let's move to the third dimension of our mind. Our body is like the wick of a candle.
The mind is a glow all around it. शरीर बाती है तो मन ज्योति है। मन एक बादल जैसे शरीर के चारों ओर भीतर बाहर मंडराता है। आप मन ही हो। Our body is inside the mind. Rather, body is inside of you. As you relax, the mind expands. And as the mind expands, your body relaxes. Let's take a deep breath in, and as we breathe out, relax even more. मुस्कुराते मुस्कुराते विश्राम करें। जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दें। अच्छे बुरे सभी विचारों को गले लगा लें। जैसे हर पात्र का अपना महत्व है, मन में हर विचार को भी अपना स्थान है। सब विचारों को गले लगा ले, स्वीकार कर ले। Take them all with you. You are much bigger than all these thoughts that hover around in the mind. A deep breath in and breathe out. सांस लीजिए और छोड़ें। कंधों को और ढीला छोड़ दें। Become aware of the vast sky. विशाल गगन का स्मरण करें। हमारी चेतना ऐसा ही है, आकाश जैसे विशाल। You are like the blue sky, unaffected, untainted. Relax yourself. अपने आप में विश्राम करें। Repose in yourself. Let go of all the tensions, all the worries. Repose in yourself. Any discomfort, any tension you feel anywhere in the body, just let it be. कहीं कोई तनाव लग रही हो या असुविधा लग रही, उसको रहने दें। वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने आप में विश्राम करें। Take another deep breath in, breathe out. Om Shanti, Shanti, Shanti. धीरे से शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। मुस्कुराते मुस्कुराते एक और गहरी सांस लें।
और धीरे धीरे सांस छोड़े और आंखें खोल सकते हो। Let us open our eyes slowly and gently. धीरे धीरे जब भी आपका मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। और अपने वीडियोस भी खोल सकते हैं। You may turn your videos on. So how was the meditation? Yeah, you may please turn your videos on. अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। How was the meditation? It's nice. Nice, sir. Nice, sir. It It was was good, very sir. good, sir. It Very was good, good. sir. अच्छा है सर। अच्छा, गुड। हाँ, कंजूसी मत कीजिए। One It was word good, answer. sir. This was my first time to do this meditation, so I kind of felt good. So, how was your experience of the meditation? Cool, sir. Relaxed. हाँ, बारी बारी से बताएं सब। हाँ, प्रिया जी आप बताइए क्या कह रहे थे आप? It was good. Actually, this was my first time कि मैंने meditation किया है, तो मुझे अच्छा लगा। गुड। देखिए अभी राजीव जी ने क्या कहा था कि दो फिलॉसफी रहती हैं। एक होता है कि पहले कुछ चीज प्रूव की जाए और फिर उस पर विश्वास किया जाए। एक होता है पहले किसी चीज पर विश्वास किया जाए और फिर वो प्रूव हो जाए। और हमारे इंडिया में क्या रहा, बोथ द थिंग्स हैव गॉन साइमल्टेनियसली। अब देखिए कितने मिनट का मेडिटेशन था, बड़ा छोटा मेडिटेशन था और एकदम लगता ना जैसे दिन भर की थकावट छू मंतर हो गई। क्यों प्रिया जी? Yes, sir. यहाँ और कौन शेयर करेगा? हाँ ममता जी आप बताइए। So it was really a great experience with, because I have just did it for I have just done it for once, and it was really great, and it was quite relaxing. So ओके, गुड गुड गुड। या शैलजा जी आप बताइए। Sir, it's very peaceful and relaxable. ओके, गुड। और डॉक्टर सोनिया? सर दिन भर की थकान दूर हो गई और माइंड बिल्कुल शांत हो चुका है। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर भारती? सर काफी रिलैक्स मूड में हूँ क्योंकि सुबह दिन भर की जो टेंशन होती है कॉलेज की वो सारी खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई, वेरी हाँ गुड। जी सर। रचना जी? सर बहुत रिलैक्स लग रहा है। माइंड एकदम से ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल में आ गया है, कि हम अपने माइंड को काबू में करके वो चीज जैसे बोल रहे थे कि पीछे से जो वीडियो ऑडियो चल रहा था सर, उसको सुनते सुनते हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल हो रहा था, कि हम एक जगह पे अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। गुड। मीरा जी? One more thing. हाँ हाँ जी जी। सर अगर कुछ देर और कराते तो मैं सो जाती। हम आने वाले दिनों में ना सभी विषयों पर बात करेंगे। विल बी टॉकिंग इन ग्रेटर डिटेल्स, नॉट थ्योरेटिकली बट विल बी एक्सपेरिमेंटिंग आल्सो ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, कि नींद क्या होती है, समाधि क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या है, माइंड क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है। तो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, लेकिन आप देखिएगा आने वाले दिनों में, है ना? हाँ शैलजा जी आप कहिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं सर, बस ये बताना चाह रहे थे कि इट्स वेरी यूजफुल कि भाई हम डेली रूटीन में अगर ऐसा करते हैं तो हमें काफी रिलैक्स फील होता है। गुड। अच्छा, और लोग कुछ शेयर नहीं करना चाहेंगे क्या?
Anybody else? Sir, it was a very good experience. हाँ वीरेंद्र जी, मैं आपको just a minute. हाँ बोलिए वीरेंद्र जी। जी बोलिए आप। सर एक्चुअली ये चीजें हमने अब तक सिर्फ सुनी थी, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मॉर्निंग में टाइम इतना होता नहीं भागा दौड़ी में सर, बट जो कामफुल अभी एक्सपीरियंस हुआ है अभी विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर, वो दैट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। आप अब दोबारा से बोलिए। अब देखिए मैंने आपको स्पॉटलाइट कर दिया। सर एक्चुअली हमारी भागदौड़ की लाइफ में ये चीजें हम सोचते हैं, जब कोई बंदा हमसे का डिस्कशन करता है या टीवी पे हम देखते हैं, तो वी थिंक अबाउट दैट, वी विल डू इट, बट इतना होता नहीं टाइम कि भाई हम अपने लिए वो कुछ मिनट्स निकाल सके। बट एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी समझ है, सीरियसली माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया है कुछ टाइम के लिए ही सही, बट अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। That's great. Well, anybody else who would like to share? इसका मतलब बाकी लोग यहाँ है नहीं क्या? बस वो ऑन करके मार्केट तो नहीं चले गए? दीपेश जी, आर यू हियर? ज्योति शर्मा जी, ज्योति जी, नीरज, राकेश वर्मा जी, डॉक्टर अशोक। यस सर। ये अटेंडेंस हो रही है आपकी? हाँ राकेश वर्मा जी। राकेश वर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ सर, आवाज। जी राकेश जी। और मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही किया मेडिटेशन और मुझे काफी रिलैक्स हुआ, और पहले कभी नहीं किया था, बस सुना था मेडिटेशन से, तो वही थोड़ा अपनी ब्रीथिंग्स पे कैसे वही कंट्रोल हो रहा है, कैसे क्या अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं वो अब कंट्रोल्ड है बिल्कुल, मतलब बॉडी और माइंड और जो ब्रीथिंग है मेरी बिल्कुल ऐसे मुझे कंट्रोल फील लगती है रियली। हाँ डॉक्टर सोनिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर। सर क्या इसके आगे भी और मेडिटेशन की स्टेजेस हैं एक्सटेंडेड? आप कहाँ से हैं डॉक्टर सोनिया? मैं सर डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ। तो कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं सर मटिक माचरी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती हूँ। सब्जेक्ट क्या आपका? सर साइकोलॉजी। और मैथमेटिक्स कौन पढ़ाते हैं आपके यहाँ? मैडम विभा, ठीक, मिस्टर सुमित एंड मिस्टर राजकुमार जी, 3 हैं। चलिए गुड गुड गुड। तो आपके सभी प्रश्नों के जवाब अगर हम आज ही दे देंगे तो ये बाकी सारा एफडीपी आप कैसे लगाओगे हैं? सर एक्चुअली मैंने बहुत पहले 2000 आई थिंक 11-12 में हिप्नोसिस थेरेपी कराई थी अपनी खुद की, सम पर्सनल प्रॉब्लम विद मी। उस समय भी मुझे इसी प्रोसेस के थ्रू ही मैं गई थी, जिसमें मैंने अपनी पास्ट लाइफ थेरेपी जो होती है रिग्रेशन थेरेपी वो कराई थी। उस समय मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, आसपास की मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बट आज मैं वो नहीं फील कर पाई। रिलैक्स हुई बट उस स्टेज तक नहीं जा पाई, तो इसलिए मैंने पूछा कि आगे इसकी कोई एक्सटेंडेड स्टेजेस हैं? आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे, और बस आज इस समय इतना ही कहना पर्याप्त है ना? यू विल बी गेटिंग द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस इन द कमिंग डेज। थैंक यू। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से जो पहला सेशन राजीव नाम्बियार जी ने लिया उसको लेकर आपके कोई प्रश्न है तो पहले आप वो पूछ लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हाँ ज्योति जी, आपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। ज्योति शर्मा जी। इट्स नाइस। आप कहाँ से हैं ज्योति जी? सर सोनीपत SITM कॉलेज। गुड। सो योर एक्सपीरियंस वाज गुड ऑफ मेडिटेशन? यस सर, गुड।
चलिए, that's great. Good. Yes. So, do you have any question? Sir, I have one question of previous session. Yeah, please. सर उन्होंने बताया हमारे कॉन्शियसनेस को, बॉडी को, ब्रेन को, है ना? तो मुझे ये पूछना है कि माइंड हमारे बॉडी के कहाँ पर है? अभी देखिए, आपने मेडिटेशन किया तो मेडिटेशन में क्या कहा गया? आमतौर पर क्या धारणा रहती है? अवर माइंड इज इनसाइड अस। लेकिन अभी मेडिटेशन में क्या बताया गया? क्यों मीरा जी, आप समझ गए ना? मीरा जी मुस्कान बता रही है मीरा जी की। हाँ मीरा जी, आप बताइए, इनके सवाल का जवाब आप दीजिए। हाँ जी, कि हमारे दिमाग में हमारा शरीर रहता है। वी आर इन द माइंड। वी आर इन द माइंड। माइंड इज नॉट इनसाइड अस। अभी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी हम धीरे धीरे सभी चीजों को we shall not be only discussing them theoretically, but we will be having experiences. क्योंकि देखिए, रसगुल्ले के ऊपर आप कितना मर्जी रिसर्च पेपर पढ़ लें, YouTube पर वीडियोस देख लें, उसका स्वाद कब आता है? चखने पे, जब उसको चख के देखें। ओरिजिनलिटी में देखते हैं। देखिए, अभी हमने जैसे बात की, साथ ही हमने एक मेडिटेशन किया, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके सामने आया। अभी धीरे धीरे और काफी आपके लिए सरप्राइजेस हैं। हम आने वाले दिनों में और बहुत कुछ करने वाले हैं। आपको जवाब मिल गया सोनिया जी? चलिए, एनी मोर क्वेश्चन? आप सवाल पूछेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। आपके स्टूडेंट्स आपसे सवाल पूछते हैं नहीं पूछते क्लास में? बोल ही नहीं रहे आप लोग। सर मूडी हो गए आजकल के बच्चे। कैसे हो गए? मूडी। हाँ, अब आप देख लीजिए, इस समय आप लोग कौन सा रोल प्ले कर रहे हो? स्टूडेंट का। जब अभी कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस होती थी, अक्सर शिकायत क्या रहती थी? स्टूडेंट्स वीडियो ऑन नहीं करते। नहीं करते। अब देखिए, अब आपको आज जवाब मिल गया होगा क्यों नहीं करते। क्योंकि आप खुद ही नहीं करते। So we are good students, हमने की हुई है ऑन। हाँ, अच्छा, मैं एक चीज आपको और बता दूं सबके लिए। देखिए, मैं तो आप ही की क्लास को बिलोंग करता हूं। आप भी टीचर हैं, मैं भी टीचर हूं। वन थिंग आई गारंटी यू, आप जब वीडियो ऑन करते हैं तो यू बिकम मोर अटेंटिव। जाने अनजाने आप और ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं और आपका अनुभव पहले से बेटर हो जाता है। आपको मैं फिर बड़ी एक जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, आप खाली ये मत सोचें कि ये एक सामान्य कोई एफडीपी है और यहाँ पे आएंगे, स्लाइड लगाएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। नो, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकल। और ये लाइफ चेंजिंग एक एफडीपी है, होने वाला है। आप लोग वीडियोस जरूर ऑन करके बैठे। एक 2 घंटे के अनुशासन की बात है। इट्स अ क्वेश्चन ओनली ऑफ 2 आवर्स। हाँ मोहित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मोहित जी, अपना अनम्यूट कर लीजिए। सर बड़ा अच्छा मेडिटेशन सेशन था, काफी रिलैक्स फील किया। गुड 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 जी, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। और अभी देखिए, आज हमने आपको एक खास किस्म का मेडिटेशन सिखाना था। ब्रीदिंग सिखानी थी। क्योंकि पार्टिसिपेंट्स आज कम है तो मैं कल सिखाऊंगा आपको, ताकि किसी का नुकसान ना हो। सो टुमारो वी शैल बी लर्निंग अ न्यू काइंड ऑफ ब्रीदिंग। कितने लोग सीखना चाहते हैं? एक ब्रीदिंग तो हम करते ही हैं, डेली करते हैं। अब भी कर रहे हो आप, रात को सोते हुए भी करते हो, है ना? करते हैं ना? एक नए किस्म की ब्रीदिंग हम कल सीखेंगे, विच इज आल्सो नोन एज विक्ट्री ब्रेथ। वो विक्ट्री ब्रेथ क्या होती है,
उसको विक्ट्री ब्रेथ क्यों कहते हैं, ये सब बातें हम कल सीखेंगे, है ना। तो आज क्योंकि पहला दिन है तो सर ये एक फिर छोटा से क्वेश्चन, एक या छोटा सा अशोक जी, क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर। या कुछ पूछना चाह रहे हैं आप अशोक जी? यस सर। अशोक जी, आप यदि प्रकट हो जाएंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रकट ही है सर, आवाज आ रही है सर। अच्छा नहीं, वीडियो ऑन आवाज करें? देख लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी यदि ऑन कर लें तो। हाँ देख कितना, यस सर। आप देखो स्माइलिंग फेस आपका कितना अच्छा लग रहा है। हाँ जी थैंक यू सर। आप पूछिए। सर अच्छा इसका मेडिटेशन का ये, जैसे तो वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उचित समय, सबसे उचित समय कौन सा है? सबसे उचित समय है एम्प्टी स्टमक। ओके। और सबसे बढ़िया स्टमक खाली हमारा कब होता है अशोक जी, आप बताइए? यही है, प्रातः काल में ही है सर। प्रातः काल। बेस्ट इज इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। लेकिन यदि मॉर्निंग में नहीं कर पाते, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे वी कैन डू इट विद ए फास्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 आवर्स। 3-4 घंटे की फास्टिंग के बाद हम कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, मेडिटेशन नहीं होगी, हम सो जाएंगे। अशोक जी, हाँ प्रश्न जी का यस जवाब सर। मिला आपको? हाँ जी सर, थैंक यू और सर। बहुत बहुत लेट नहीं करना, रात को नहीं करनी 11 बजे 12 बजे, आप रात भर सो नहीं पाओगे, फिर हाँ फिर वो डिस्टर्बेंस आ जाती है उसमें। फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, ओके जी, आज थैंक यू आपका, सर। आज अनुभव कैसा रहा आपका? अच्छा था सर, मैं करता रहता हूँ इसको, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। और आपके किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर भारती, हाँ जी सर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। सर सवालों के जवाब पहले ही सर ने दे दिया, इतनी क्लियरली समझा दिया पहले भी, और आपने भी इतने अच्छे तरीके से बता दिया सर। चलिए दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ जी थैंक यू सर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं। मैं होमवर्क दे दें? यस यस सर। अब देखो वो टीचर ही क्या जो होमवर्क ना दे, और वो स्टूडेंट ही क्या जो होमवर्क करके आए। जो होमवर्क ना करे सर। ये तो कल पता चलेगा, ठीक है सर। है ना। हाँ जी तो सर। आपने कल क्या करना है, आने से पहले जब भी आपको समय मिले बस 5-10 मिनट बैठ करके मनन करना है कि इस एफडीपी में पहले दिन क्या क्या बातें हुई, क्या बताया गया, और उसमें से आपको क्या समझ में आया। मुश्किल तो नहीं है, मोटा मोटी नो सर, नो कॉन्शियसनेस सर। के बारे में आपने क्या इजी सीखा। यस यस, इजी है सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये सब करके लेके आएंगे। और ब्रेथ के बारे में आप थोड़ा सोच के आइएगा, कल और बात करेंगे। ब्रेथ के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना। ब्रेथ के बारे में आप क्या जानते हैं। और कल जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, हम एक नए तरीके की ब्रीदिंग सीखने वाले हैं, उसे क्या बोलते हैं, विक्ट्री ब्रेथ। और कल थोड़ा फ्री होकर के आए, फ्री इन द सेंस कि कोई भी काम है अपने माइंड को सिग्नल देके 7 बजे वीडियो ऑन करके बैठेंगे, और फिर लगभग 9 बजे हम आपको फ्री कर देंगे। इज इट ओके? ओके सर। थैंक यू सर। तो सुमी जी, आर यू हियर? और Yes, Dr. sir. DK Jain is here, sir. प्रोफेसर जैन? Yes, sir. Yes, sir. मैं देख नहीं पा रहा हूं उन्हें। Yeah. So I'm here, sir. I'm just listening. Yes, sir. या So thank you very much, sir. Yes. सो प्रोफेसर जैन, आज पहला दिन है तो Yes, आज sir. थोड़ा यहीं पे समाप्त करेंगे। Yes, कुछ sir. करवाना था लेकिन वो पार्टिसिपेंट्स आज कम है, जो Yes, नहीं sir. आए मिस हो जाएगा, इसलिए हम कल करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारी ओर से आज इतना ही है। आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो तो यू आर वेलकम, प्लीज। It is okay, sir. It's okay. And we'll meet again tomorrow, sir. Yes, sir. Thank you, sir.
Yeah. Namaskar. Yes, sir. Thank you. Namaskar, sir. Namaskar. Good night, sir. So tomorrow at 6:55, Okay. 6:55 पर sharp, so that we can start timely and we'll be winding up timely. Oh, okay, sir. We'll be meeting Thank you, sir. tomorrow at Thank you. 6:55. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank Bye. you, sir. Thank you. Okay, thank you, sir.